بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں نے خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد صاحب بزنس مین تھے اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ ساجدہ باجی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ والد صاحب ہم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ تم دونوں میرے بیٹے ہو، میرا فخر ہو، پڑھائی میں اول رہنا، میرا بھرم رکھنا، کبھی میرا مان توڑ نہ دینا۔ ساجدہ باجی اور میری عادات میں بہت فرق تھا۔ میں سادہ طبیعت تھی جبکہ وہ شوخ اور چنچل تھی۔ میں پڑھائی دل لگا کر کرتی، وہ زیادہ وقت رسالے اور ناول پڑھنے میں گواتی تھی۔ ٹی وی کا ہر پروگرام دیکھنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ جب نتیجہ آتا تو میں اول اور وہ بمشکل پاس ہوتی تھی۔ والد صاحب کو ساجدہ کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی۔ کہتے کہ یہ لڑکی کچھ نہیں بن سکے گی۔ تب امی سمجھاتی کہ ضروری نہیں یہ بھی کچھ بنے۔ اگر ایک بیٹی اچھی ہے تو شادی کے بعد یہ بھی اچھی بیوی بنے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکیوں کو بالآخر اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ میں اسے گھرداری سکھا دوں گی، اس کی زندگی میری دعا سے کامیاب ہو جائے گی۔ وقت گزرنے لگا۔ باجی اور میں نے میٹرک ایک ساتھ پاس کر لیا۔ میرے حسب سابق نمبر انتہائی شاندار تھے۔ مجھے ایک اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ ساجدہ باجی 3rd ڈویژن میں پاس ہوئی تھیں۔ اب ان کا داخلہ کسی کالج میں نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے سفارش کروا کر ابو نے ان کا داخلہ ایک کالج میں کروایا تاکہ وہ BA کر لیں۔ کالج جانے کے بعد باجی کا مزاج بدل گیا۔ اب وہ بات بات پر لڑتی تھی، جبکہ پہلے وہ میرے ساتھ پیار بھرا رویہ رکھتی تھی۔ امی سے بھی الجھ پڑتی۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ باجی ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ہم دونوں کے کالج جدا جدا تھے، مگر ہم ایک ساتھ ہی صبح کالج سے نکلتے۔ پہلے دن میں ان کو ڈراپ کرتی تھی، کیونکہ ساجدہ باجی کا کالج پہلے آتا تھا اور بعد میں میرا۔ اکثر تو ڈرائیور ہمیں لاتا اور لے جاتا۔ کبھی وہ موجود نہ ہوتا تو میں گاڑی ڈرائیو کرتی، کیونکہ باجی کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ ایک روز ہم دونوں اکٹھی کالج جا رہی تھی کہ راستے میں میری بہن کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے 2-3 بار دیکھا، اس نے ابھی تک فون اٹھایا نہیں تھا۔ تبھی میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی دوسرا معاملہ ہے، ورنہ وہ ایسا نہ کرتی، میرے سامنے ہی بات کر لیتی۔ بہرحال میں نے کچھ نہ کہا، میں خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ انہی دنوں ہمارا ڈرائیور چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ دوسرے روز بھی یہی ہوا۔ کالج سے اب گھر آ کر ساجدہ باجی کئی بار کسی سے بات کر رہی ہوتی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتی تو وہ جلدی سے موبائل بند کر دیتی۔ مجھ میں تو پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس کا فون ہے اور یوں رازداری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک روز میں نے دیکھا باجی نے پرس میں ہلکی پھلکی جیولری اور لپسٹک وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ کالج میں ان چیزوں کا استعمال ممنوع تھا۔ تبھی شک اور زیادہ ہو جاتا۔ مجھے لگا وہ کالج کی چھٹی سے پہلے نکل جاتی ہیں، کیونکہ جب ہماری گاڑی انہیں لینے پہنچتی تو وہ کالج کے باہر ہمیں انتظار کرتی ملتی۔ میرا جی چاہتا امی سے کہوں، مگر پھر امی کے سوالات کا کیا جواب دیتی۔ میرے پاس باجی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ویسے بھی میں چھوٹی بہن تھی، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بڑی بہن کے روب میں تھی، وہ جو چاہتی کرتی رہتی۔ البتہ مجھے اس کی فکر روز و شب کھلتی رہتی تھی۔ 1-2 بار میں نے اشارتاً پوچھنا چاہا تو لڑنے پر آ گئیں۔ تبھی انہوں نے غصے میں مجھ سے بات چیت بھی بند کر دی تھی۔ ان دنوں ہماری بات چیت بند ہو گئی تھی اور 1 ماہ سے ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ ایک روز ساجدہ باجی نے کالج سے واپسی پر اچانک بڑے پیار سے کہا، چلو رانیہ، تمہیں فلودہ کھلانے لے چلوں۔ اس خاموشی اور کشیدہ ماحول سے میں بھی اکتا گئی تھی۔ میں نے کہا شام کو کھانے چلیں گے، ابھی تو گھر چلتے ہیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ حیران تھی کہ اتنے دنوں بعد باجی اتنی نرم مزاجی سے بات کیسے کر رہی ہیں۔ بہرحال عرصہ دراز بعد ان کے چہرے پر اتنی خوشی دیکھی تو دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ ساجدہ شام کو سج سنور کر تیار ہو گئی۔
तब मेरा माथा ठनका कि फालूदा खाने जा रहे हैं, कहीं शादी में तो नहीं जा रहे। ऐसी शानदार तैयारी किस लिए? मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। फिर से इनके सेल की घंटी बजने लगी। सानिया, वाकई क्या तुम जख्मी हो? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। इन्होंने फोन पर अपनी सहेली को जवाब दिया और फोन बंद करके मुझसे मुखातिब हुई। रानिया, सानिया ठीक नहीं है, कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। फालूदा खाने के बाद इसे देखने न चले? मैंने कहा, आपकी हम जमात है, आप जाती हैं तो जाएं, मैं अम्मी की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जब हम आइसक्रीम बार पहुंचे, बाजी ने कहा, मैं फालूदा ऑर्डर कर देती हूँ, अगर बेरा ले आए तो तुम खा लेना, तुम यहीं बैठो, वो सामने सड़क पार सानिया का फ्लैट है, मैं उससे पूछ कर आती हूँ, 5 मिनट में आ जाऊंगी। ये कहकर वो चली गई। मैं फैमिली केबिन में अकेली बैठी थी। इतने में फालूदा आ गया। मुझे खौफ बहुत हुई। मैं अकेली ही फालूदा खाने लगी। 5 मिनट के बजाय 25 मिनट गुजर गए, मगर बाजी का कोई अता पता नहीं था। तभी मेरा दिल घबराने लगा। मैं बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी। मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। तभी मैं गाड़ी में बैठ गई, मगर घंटा और गुजर गया और बाजी का नामो निशान नहीं था। तभी मुझे गुस्सा आने लगा। मैं वहां से घर आ गई। अम्मी अबू घर पर नहीं थे, महीने का राशन लेने गए थे। मुलाजिमा घर पर थी। जाते ही मैंने कहा, अम्मा पाकीज़ा, जरा चाय बना कर दो, सर में दर्द हो रहा है। सोच रही थी अम्मी अबू आ गए होंगे और बाजी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगी। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी कि साजदा बाजी आ जाएं। 1 घंटा और इस तरह में गुजर गया कि अचानक फोन की घंटी बजी। साजदा बाजी घबराई हुई आवाज में बोली, रानिया, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, घर पर हूँ, आपसे ही पूछना था कि आप कहाँ हैं। मुझे फालूदे की दुकान पर तन्हा छोड़कर तुम घर चली गई? वो बोली, गुस्सा बाद में आकर कर लेना, जल्दी से शॉपिंग मॉल पर आ जाओ जहाँ तुमने गाड़ी पार्क की थी। मैं खुद भी यही चाहती थी कि अम्मी अबू के लौटने से कबल साजदा बाजी घर पर मौजूद हूँ। मैं फौरन अपने बेडरूम से निकलकर गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से मज़कूरा शॉपिंग मॉल पर पहुंची। देखा तो बाजी एक और गाड़ी में बैठी हैं। मुझे देखते ही कार से निकलकर मेरी तरफ दौड़ी और कहा कि जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। कोई सवाल किए बगैर मुझे गाड़ी स्टार्ट करना पड़ी। घर पहुंचे तो सीधी अपने कमरे में चली गई। मैं खामोशी से बाजी को जाता देखती रही। काफी देर तक जब वो कमरे से न निकली तो मुझे तशवीश हुई। तभी खुद उनके कमरे में गई कि इस सारे ड्रामे का सबब तो पूछूं। जब उनके कमरे का दरवाजा खोला तो बाजी अपने बेड पर इस कदर जोर शोर से रो रही थी जैसे कोई मर गया हो। या इलाही, खैर क्या हुआ है? मैंने बाजी को जाकर पुकारा, बाजी कुछ तो बताओ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कहा, नहीं रानिया, तुमसे नहीं, मुझसे गलती हो गई है, और ये गलती ऐसी है कि इसका कोई इजाला नहीं है। वाकई मैं बहुत बुरी हूँ, बाजी ने हाँफते हुए जवाब दिया था। मैं सोच नहीं सकती थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तभी इन्होंने सिसकियों में बताया, जब तुम्हें फालूदा खिलाने ले गई थी उस वक्त मैंने आइसक्रीम बार के बाहर सानिया को वक्त दिया हुआ था। तुम्हें केबिन में बिठाकर मैं बाहर उससे मिलने चली गई। सोचा कि वहां खड़े 5 मिनट बात करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मगर इसने इसरार किया कि सामने फ्लैट पर चलो, वहां बैठकर आराम से बात कर लेंगे। यहाँ शॉपिंग मॉल के पीछे खड़े होकर बातें करना ठीक नहीं है, सैकड़ों लोग आते जाते हैं। जब उसने बहुत इसरार किया तो मैं एतबार करके उसके साथ चली गई। फ्लैट में सानिया का कजिन उजैर मौजूद था। जब वो कॉलेज में सानिया को लेने आता था तो मायने खेज निगाहों से मुझे देखता था। एक बार सानिया ने उसका तारुफ मुझसे करवाया था, फिर वो मेरे पीछे ही पड़ गया। रोज सानिया की मार्फत तरह तरह के पैगामात भेजता रहता था। तंग आकर मेरे सानिया से उसका सेल नंबर ले लिया। फोन पर समझाया कि वो मुझे तंग न करे, ना ही मेरा पीछा करे। तुम्हारी कजिन मेरी दोस्त है, मैं इसी वजह से आराम से बात कर रही हूँ, वरना तुम जैसों को बुरा भला कहने में हर्ज ही क्या है। उसने मेरी कुछ न सुनी और परेशान करता रहा। उसका कहना था कि अगर एक बार मिलोगी तो फिर परेशान नहीं करूँगा। एक बार मिली तो उसने ऐसी बातें की कि मैंने उससे दोस्ती कर ली और फिर हम सेल पर बातें करने लगे। कभी कभार वो सानिया को कॉलेज लेने आता तो मैं उसके साथ कॉलेज से बाहर निकलकर गाड़ी में 2-4 बातें कर लेती थी।
यूं हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। हर वक्त उसी का ख्याल आता रहता। वो भी दिन में कई बार फ़ोन करता। उस रोज़ सानिया ने फ़ोन किया कि उज़ैर का हादसा हो गया है, 4 दिन अस्पताल में रहकर अब घर आया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि क्यों ना उसे देखने जाऊं। तभी तुम्हें फालूदे का बहाना किया। सोचा कि 2 मिनट उज़ैर की इयादत कर लूंगी। सानिया ने कहा, मैं शॉपिंग मॉल के पास ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तभी मैं उसे केबिन में बिठाकर बाहर चली गई। वो वाकई वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके साथ उसके फ्लैट पर चली गई। वहाँ उज़ैर मौजूद था, मगर बिल्कुल ठीक ठाक था। सानिया ने मुझसे झूठ बोला था। सानिया कुछ खाने पीने को लाने का बहाना करके फ्लैट से चली गई। उसने मुझे और उज़ैर को तन्हाई में मुलाकात का मौका दिया। हालांकि ऐसी मुलाकात की मैं ख्वाह नहीं थी। जब उसने मेरी तरफ गलत इरादे से करीब आना चाहा, तो मैंने उसे धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागकर सड़क पर आ गई। नीचे सानिया कार में बैठी थी। मैंने उसकी कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने आंसू जब्त किए और तुम्हें फ़ोन मिलाया। सानिया ने मौके की नज़ाकत को समझकर मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मैंने उससे कोई बात की। उसी वक्त तुम आ गई जब साजिद वहाँ आया था। तभी मैं तुम्हें देखते ही सानिया की कार से नीचे उतरी और अपनी गाड़ी में आ गई। ये कहकर वो फिर रोने लगी। तब मैंने इनकी अश्कशोई की। बाजी अब आप अपने घर पर हैं, अब क्यों रो रही हैं? कहने लगी, दुख इसी बात का है कि दोनों फ्रॉड थे। इन्होंने मुझे धोखा दिया, जबकि मैं इन्हें अपना दोस्त समझकर जाने अजीज रखती थी। क्या उज़ैर सानिया के घर रहता है? मेरे सवाल के जवाब में बाजी ने बताया कि उज़ैर का घर अपने गांव में है। वो पढ़ने के लिए लाहौर आया हुआ है। उसे अपने चचा के घर में रहना है। सानिया के वालिद उसके चचा हैं। वो इन दिनों गांव गए हुए हैं क्योंकि उज़ैर के वालिद बीमार हैं। इसलिए उनकी मिजाज पुरसी के लिए 2 दिन के लिए सानिया के वालिदैन गांव गए थे। तो भी इन्होंने मौका गनीमत जाना और मुझे झूठ बोलकर फ्लैट पर बुला लिया। बाजी को बहुत गम था कि इन्होंने बाजी से झूठ क्यों बोला। बस उस दिन से उनका दिल सानिया से ऐसा खफा हुआ कि उससे नफरत हो गई। इसी काम में इन्होंने कॉलेज जाना भी तर्क कर दिया। यूं पढ़ाई में उनको दिलचस्पी वैसे भी नहीं थी। इस वाक़े के 6 माह बाद इनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया और साजिदा बाजी ब्याह कर अपने पिया के घर चली गई। वो शुक्र करती थी कि उज़ैर जैसे लड़के के चुंगल में फंसने से बच गई। खुदा ने उन्हें अच्छा जीवन साथी दिया था। बेशक मेरे दुल्हा भाई बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं, तालीम याफ्ता, खुशहाल और खूबसूरत, इनमें कोई कमी नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने बाजी को बुराई में गिरने से बचा लिया। वो खुद बुरी नहीं थी, गलत सहेली ने गलत राहों पर लगा दिया। वो सीधी सादी थी, तभी इन्होंने इन लोगों पर भरोसा कर लिया था। बाजी के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई थी। वालिदैन से कह दिया था, मुझे पढ़ाई का शौक है, जब तक मास्टर्स नहीं कर लूँगी मेरी शादी के बारे में कोई न सोचे। अबू भी देख रहे थे कि उनकी बेटी तालीम से रग़बत रखती है। मैंने हमेशा अच्छे नंबर लिए थे, सो इन्होंने मुझे पढ़ने से नहीं रोका। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई। यूनिवर्सिटी में मुझे हादिया जैसी दोस्त मिल गई। वो बहुत खुश अखलाक लड़की थी। क्लास में मैं रोज़ाना उसके साथ बैठती थी, मगर 3 माह के बाद ही उसने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया और वजह भी नहीं बताई। तभी मैं अब अकेली रहने लगी थी। क्लास में उदास तन्हा बैठी रहती, किसी से दोस्ती नहीं की। कुछ दिनों के बाद एक रोज़ मेरे सेल फोन पर रिंग बजी। फ़ोन देखा तो एक रॉन्ग नंबर था। मैंने लिफ्ट नहीं करवाई, मगर उसने भी पीछा नहीं छोड़ा और रोज़ाना तंग करने लगा। फ़ोन पर बात ना करती तो प्यार भरे अशार SMS करता। फिर एक दिन बात की कि भाई मुझे क्यों तंग करते हो? उसने कहा बात किया करो तो तंग नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं अजनबी लोगों से बात क्यों करूं? बोला मैं अजनबी तो नहीं हूँ, ताहा बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा नंबर तुम्हारी सहेली ने दिया है कि रानिया बेवकूफ़ लड़की है, उसे तंग किया करो, आखिर एक दिन ड्राम हो जाएगी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। सोचा कि दोस्त भी कितने रूप रखते हैं, सामने क्या थी और पीछे क्या। ताहा ने कहा मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया कि आपको आपकी सहेली की असलियत का पता चल जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हादिया मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उससे प्यार किया और उसने धोखा दिया।
एक अजनबी लड़के को मेरा नंबर दे दिया। ताहा ने मशवरा दिया कि हादिया को फ़ोन करके उसे खूब सुनाओ ताकि आइंदा किसी अच्छी लड़की के साथ वो ऐसा न करे। ताहम मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं सदा की बुज़दिल थी। अब ताहा की कॉल आने लगी। मैं उससे फॉर्मल सी बात कर लेती, तब उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। मगर फिर एक दिन अजनबी नंबर से कॉल आई। मैंने रॉन्ग नंबर समझकर ना उठाया। एक रोज़ तंग आकर फ़ोन उठाया। अजनबी ने कहा कि मैं ताहा का उस्ताद हूँ। वो पढ़ाई में नालायक था, सेल फ़ोन हर वक्त हाथ में रखता था। एक दिन मैंने क्लास में उसका सेल ले लिया, मोबाइल में आपका नंबर देखकर कॉल की ताकि आपको रोकूं कि ताहा अच्छा लड़का नहीं है। इसके अलावा भी कई लड़कियों को फ़ोन करता है। आप अपने माँ बाप की इज्जत का पास रखें और उस लड़के से फ़ोन पर बात न करें। ताहा की कॉल आई तो मैंने उससे पूछा, तुम दूसरी लड़कियों से भी फ़ोन करते हो, लिहाजा आइंदा मुझसे बात न करना। इस पर वो परेशान हो गया। पूछा, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, तुम्हारे उस्ताद ने। उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। फिर वो अकेडमी ही छोड़ दी जिसमें नासिर साहब बतौर उस्ताद पढ़ाते थे। अब कभी कभार उस्ताद साहब के फ़ोन आने लगे। कहते, शुक्र है कि तुमको अल्लाह ने ताहा जैसे लड़के से बचा लिया। मैं कहती, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं शायद उसके जाल में फंस जाती। एक रोज़ नासिर साहब ने कहा, आप हमारी अकेडमी में दाखिला क्यों नहीं लेती? मैं शर्तिया कहता हूँ, अगर आप हमारी अकेडमी से पढ़ाई करें तो आपकी पोजीशन आएगी। पढ़ाई के शौक में मैं उनकी अकेडमी में चली गई। मैंने वहाँ दाखिला ले लिया। नासिर साहब ने बहुत तवज्जो से मुझे पर्चों की तैयारी करवाई। मैंने इम्तिहान दिया और पोजीशन ली तो वो बेहद खुश हुए थे। मैं भी तो खुश थी। वो मुझसे अब फ़ोन पर राब्ता करने लगे। रफ्ता रफ्ता दिल की बात ज़ुबान पर ले आए। वो मुझसे शादी के ख्वाहां थे। मैंने अपने दिल को टटोला। मैं भी यही चाहती थी। मैंने कहा, आप रिश्ता लाइए, मैं अपने वालिदैन को अपनी रजामंदी से आगाह कर दूंगी। इन्होंने मेरे वालिदैन से रिश्ता तलब किया। अम्मी ने मेरी रजामंदी मालूम की तो मैंने हाँ कर दी। मेरा रिश्ता नासिर साहिब से हो गया। अगरचे वो उम्र में मुझसे बड़े थे, मगर दिल पसंद कर ले तो उम्र का फ़र्क नहीं देखा जाता। एक दिन मुझे एक कॉल आई। ये लड़की मेरे साथ अकेडमी में पढ़ती थी। उसने कहा, रानिया, क्या तुम पागल हो? नासिर साहब शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप हैं। तुम उनसे शादी करना चाहती हो? मैं तो सुन हो गई। अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नासिर साहब को फ़ोन करके वजाहत चाही। इन्हें सच बताना ही पड़ा, मगर कसमें खाने लगे कि तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मैंने कहा, जान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे प्यार है, मुझसे शादी करना चाहते हैं तो बीवी को तलाक दे दें। मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वो खफा होने लगे। कहा कि मेरी बीवी मेरे लिए अजीज है, वो मेरे बच्चों की माँ है। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ मगर उसे नहीं। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रोने लगी। तभी अम्मी अब्बू ने समझाया कि ये रिश्ता वैसे ही बेजोड़ था। खुदा का शुक्र अदा करो कि हकीकत का वक्त से पहले इल्म हो गया। यूं मेरी शादी नासिर से ना हुई। मैं कुछ अरसा गमज़दा रही। नासिर के धोखे ने दिल को घायल कर दिया था। फिर मेरी बहन की तरफ से वालिद साहब की कोशिशों से एक अच्छा रिश्ता आ गया। अब मैं अपने घर में खुशो खुर्रम और आबाद हूँ। मगर कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे अल्लाह ने कितने बड़े बड़े धोखों से बचाया। सच है कि ये मेरे माँ बाप की कोई नेकी थी, वरना मैं इस काबिल तो नहीं थी कि बार बार इन धोखों से बचकर खुशियों के आंगन में अपना घर बनाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।